Good morning everyone and welcome to the class. Now we are in the second chapter of civics and the name of the chapter is diversity and discrimination. This chapter is also related with diversity. In the previous chapter we have discussed about diversity. What do we mean by diversity and why people are diverse? And now we will see that under this chapter we are going to know the reason of discrimination which is done on the basis of diversity. Diversity is very important. In the previous class, as we have seen, ki diversity adds so many things in our life, like we know different languages, we know different type of food items, we celebrate different festivals, and moreover diversity is responsible for creativity also. It causes it enhances our imagination power, है ना. तो these are very important benefits of living in a country like India, which is a diverse country. But at the same time we find that people are discriminated against because of diversity. It happens in our society, we experience this. ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है. व्हाट डू वी मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि उनके साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं होना. लाइक अगर कोई जैसे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक इफ समवन बिलोंग्स टू अपर कास्ट एंड समवन बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, देन both the people will be treated unequally. The person who belongs to upper caste will be treated in a well manner, and the person who is belonging to the so-called lower caste of the society, he will be behaved in a ill manner. So this is discrimination. लाइक रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है ना. तो ये डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री में है वो हमारे लिए बहुत इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐड करती है. बट एट द सेम टाइम वी फाइंड कि दिस डाइवर्सिटी बिकम्स द रीजन फॉर discrimination. So under this chapter we are going to discuss all these issues regarding diversity and discrimination. And first of all, we all are knowing that we all are different from each other. The language we speak, the food we eat, the clothes we wear, the games we play, the festivals we celebrate, all these are different bases on which diversity exists in our country. And especially in the case of our country, we find that this is the unique feature of our country, that we are a diverse nation. You can just imagine, in our country there are 8 major religion, all the people belonging to 8 major religions of the world live in India. जो भी 8 जो मेजर रिलीजन दुनिया की है, उस सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं. सो द 8 मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज हिंदुइज्म. आई एम राइटिंग डाउन द नेम्स ऑफ द रिलीजन. हिंदुइज्म, सिखिज्म, इस्लाम, Christianity, Jainism, Buddhism, then Judaism, and eighth is Zoroastrianism. So these are the 8 major religion of the world. Okay, and what we find that people belonging to these
religion are there in our country. People belonging to these 8 major religions are living in our country. Hindus are there, then Sikhs are there, then Muslims are there, Christians are there in our country, Buddhist, Jainis are also there in our country, Jainis and Buddhist. Then Judaism, the people who follow Judaism are called Jews. In the previous chapter we have seen in Kerala, there are people who believe in the faith of Judaism, है ना. तो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं वो जीव कहलाते हैं. जैसे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो कि पारसी रिलीजन होता है, जिसकी पॉपुलेशन हमारे यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये जो 8 मेजर रिलीजन है उन सबको फॉलो करने वाले लोग जो है वो इंडिया में हैं. दिस इज व्हाट इज इट? दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, है ना, कि यहाँ सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं. ओके, एंड देन वी सी कि लैंग्वेज के भी अगर बेसिस पे हम देखें तो आवर कंट्री इज अ डाइवर्स कंट्री, बिकॉज इन आवर कंट्री देर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस are there which people speak in our country. 1600 language, 1600 languages. So you can just imagine the intensity of diversity. कितना ज़्यादा diversity जो है वो हमारे country में है. And then अगर dance forms को हम देखें तो more than 100 dance forms are there in our country. So these are all proving that our country is full of diversity. Okay, and this diversity is we have seen in the previous chapter that diversity is beneficial for us because it adds so many things in our life. But now what we find कि diversity is not always celebrated. It's not always कि people welcome diversity. Many times what happens, this is human nature also, कि we feel safe and secure when we are surrounded by people who are like us, who speak the same language like us, who have the same culture like us, who लुक, जैसे अपियरेंस में क्या होता है, अगर डिफरेंट कई बार होते हैं कि कुछ लोग जो अगर डाइवर्सिटी की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कई बार फिजिकल अपियरेंस में भी हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. लाइक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड लाइक पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दे हैव सम डिफरेंट फिजिकल अपियरेंस. देयर आईज आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु बिलोंग टू नॉर्दर्न रीजन. Then we can also see the difference in the color of the skin of North and South India. तो ये जो differences है, ये differences कभी कभी हमें अच्छी नहीं लगती, कभी कभी नहीं. Most of the cases में हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे जैसे हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं, जो हमारे जैसे बोलते हैं, जो हमारे जैसे खाते हैं, जो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हम उनके साथ अगर हैं तो we feel protected. हमें ये लगता है कि हाँ हम सेफ हैं. बट एट द सेम टाइम अगर हम ऐसे लोगों के साथ हो जाएं जो कि हमसे बिल्कुल ही अलग दिखने में हो, जो हमसे बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज बोल रहे हो, जो हमसे बिल्कुल ही अलग खाना खाते हो, जिनका लाइफ स्टाइल हमसे बिल्कुल ही अलग हो, तो हमारे मन में एक टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी आती है. तो ये है डाइवर्सिटी जो है, उसको हम हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं. मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि हम चाहते ही नहीं डाइवर्सिटी नहीं हो, हम एक सिक्योर माहौल में रहें, हमें हमेशा हमारे जैसे लोगों के साथ ही रहना पड़े, है ना. तो दिस हैपेंस विथ पीपल लाइक अस. एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि व्हेन वी मीट सम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, they are different in anything, like they are speaking different language, or they are practicing different religion, or they are looking different from us. So in that case what happens, we find them strange and unfamiliar. We do not try to understand the reason behind that diversity. As we have seen in the previous chapter
कि जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं, जैसे हमने वी हैव कंपेयर्ड द लाइफ इन लद्दाख एंड द लाइफ इन केरला, what we observed, the whatever diversity was there between Kerala and Ladakh, the historical and geographical factors were responsible for this diversity, isn't it? Ladakh की geographical condition was completely different from the geographical condition of Kerala. इस कारण से वहाँ की लाइफ डिफरेंट होती है, वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड अर्न करने का जो तरीका होता है दैट इज़ डिफरेंट, यहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड अर्न करने का तरीका होता है वो अलग होता है. तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द फैक्टर्स, द जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स. तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ डाइवर्सिटी दिखती है कि वो हमसे अलग है. वी डोंट वांट टू नो कि व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. क्यों? क्योंकि वो जिस रीजन को बिलोंग करते हैं उस रीजन के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे रीजन के जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. द मोमेंट वी विल अंडरस्टैंड दिस रीजन ऑफ डिफरेंस, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, वी विल स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस कि दे आर अनफेमिलियर, दे आर स्ट्रेंज. हम ऐसा नहीं सोच पाते, हम बस ये हमें उनकी डाइवर्सिटी दिखती है, हमें उस डाइवर्सिटी के पीछे रीजन नहीं दिखता है. और इसी बेसिस पे ये जो डाइवर्सिटी नजर आती है, इसी बेसिस पे हम अपने मन में बहुत तरह की बातें सोच लेते हैं कि उस रीजन के लोग, वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, या फिर उस लैंग्वेज को जो बोलने वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जबकि एक्चुअल में ये बात नहीं होती. इट इज ओनली इन आवर माइंड. ये सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले या एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं. ये बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में है, एक्चुअली वो नहीं एग्जिस्ट करती है ना. तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि आखिर डाइवर्सिटी का रीजन क्या है. जिस समय हम डाइवर्सिटी के रीजन को अगर समझने या शुरू कर देंगे तो फिर हमारे मन में इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, निगेटिव फीलिंग्स हैं, वो नहीं रह जाएंगी. ओके, लाइक अगर हम सिंपल सी रूरल और अर्बन एरियाज को ही कंपेयर करते हैं, रूरल विलेज वाला लाइफ हुआ एंड अर्बन जो हम सिटी लाइफ होती है, तो हम देखेंगे व्हाट वी फाइंड कि पीपल बिलोंगिंग टू बोथ दीज रीजन्स थिंक वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स अबाउट ईच अदर. लाइक जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, उनकी लाइफ बहुत इजी होती है. डू यू अग्री विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कि पीपल लिविंग इन cities are lazy and their life is easy? No, we can never accept this, because we know we are living in cities and we know how hard we have to work in order to survive in the city. तो ये जो रूरल एरियाज के लोग जो अर्बन एरियाज के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. वो ऐसा इसलिए सोचते हैं, क्यों सोचते हैं वो ऐसा? What is the reason behind thinking कि people belonging to urban areas are lazy and their life is easy? Because we have so many facilities, like हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, हमारे घर में कई सारे गैजेट्स होते हैं, लाइक मिक्सर है, ग्राइंडर है, देन हम फूड प्रोसेसर है. इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ईजी है, इनको तो कुछ काम ही नहीं करना है, ये तो सारा कुछ मशीन से हो जाता है. बट यस, जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं लोग, उनको फैसिलिटीज मिल रही है, तो बट उसके हिसाब से उनके काम भी ज़्यादा होते हैं, है ना. तो ये धारणा इसलिए बनी रूरल एरियाज में, ये जो सोच बन रही है, ये जो थिंकिंग आ रही है कि अर्बन एरिया के लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती है, वो बिकॉज ऑफ मशीन्स. क्योंकि हमारे घर में तरह तरह के मशीन्स होते हैं जो कि उनके यहाँ नहीं होते हैं, रूरल एरियाज में नहीं होते हैं. तो ये इस कारण से वो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं. इसी तरह से जो अर्बन एरियाज के पीपल हैं, दे थिंक दैट people in villages do not like to use modern technology. But this is not the fact. This is also true. The urban people who are thinking like this कि जो rural areas के लोग हैं वो modern technology को use नहीं करना चाहते, ये गलत है. क्योंकि उनके पास availability नहीं है. पहली चीज़ तो electricity, कई तो ऐसे हमारे विलेज है जहाँ पर electricity है ही नहीं. अगर है भी तो बहुत ज़्यादा irregular है, power cuts बहुत ज़्यादा होते हैं, और
अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है भी तो दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज कि दे कैन स्पेंड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, है ना। तो इस कारण से दे आर नॉट यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि उनको अच्छा नहीं लगता, दे ऑल्सो दे वुड लव टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कौन नहीं यूज करना चाहेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं सीखना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि ये उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, है ना। तो ये जो अर्बन पीपल सोच रहे हैं रूरल पीपल के बारे में, वो भी गलत है। जो रूरल पीपल अर्बन पीपल के बारे में सोचते हैं वो भी गलत है, क्योंकि हम जो हैं वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम दूसरों के हिसाब से चीजों को नहीं सोचते हैं। वॉट एवर वी थिंक अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन, है ना। हम अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम चीजों को सोचते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि हम कई बार हम निगेटिव चीजें ही सोचते हैं। हमें ये लगता है कि हम जो है हम ही सबसे अच्छे हैं, बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो लोग हैं अदर रीजन में रहने वाले लाइक अर्बन पीपल जो है वो रूरल पीपल के बारे में वैसे सोचते हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करने वाला दूसरे रिलीजन के पीपल के बारे में ऐसा सोचता है। एक लैंग्वेज को बोलने वाला दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले के बारे में ऐसा सोचता है। तो ये चीजें मोस्टली निगेटिव थिंकिंग ही हम अपने दिमाग में रखते हैं कि उस कल्चर को मानने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। तो ये जो हमारा फीलिंग है, ये जो थॉट है, हमारा निगेटिव थॉट है दूसरों के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम दूसरों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। वी बिकम जज, है ना, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। कोई हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि कोई ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस है। वी हैव नॉट गॉन फॉर द रीजंस, वी जस्ट बिकम द जज। हम जज बन गए, और जज बन करके हम क्या कर रहे हैं, जो अदर पीपल हैं उनको हम निगेटिवली जज करते हैं। और हमेशा मोस्टली ये ह्यूमन नेचर, इट इज ह्यूमन नेचर, है ना। ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम दूसरों को अपने से इंफीरियर ही मानते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट नेचुरल, इसमें ये नहीं है कि ये बुरी बात है ऐसा सोचना, ये होता है, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें हमसे जो डिफरेंट दिखेगा हम उसको अपने से इंफीरियर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको चेंज हम कॉन्शियसली कर सकते हैं, सोच के कर सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो अभी हम उस पर बाद में आएंगे, ओके। वी डोंट हैव टू एट प्रेजेंट, आई एम जस्ट telling you about this negative feeling, and this negative feeling जो हमारे अंदर होती है regarding people belonging to different culture, religion और caste और anything like that, ये जो different जो negative feeling होती है जिसमें कि हम दूसरों को negatively judge करते हैं और दूसरों को inferior बताते हैं, इस feeling को हम क्या कहते हैं? We call this feeling prejudice. So this is called prejudice. Prejudice, pre, पहले से हमने जजमेंट ले लिया, ओके। सपोज अगर हमारे जज भी ऐसे ही करते, किसी को देख करके बता देते कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, तो कैसा होता, कितना अनजस्टिफाइड होता वो, है ना। तो हम भी उसी तरह से जज कर रहे हैं लोगों को विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग। बस हमने बाहर से देखा और हमने जज कर लिया। हम ये मानते हैं कि किसी एक काम को करने का बस एक ही तरीका जो है वो सही है, उसके अलावे अगर कोई किसी और तरीके से उस काम को करता है तो उसको गलत माना जाता है, इंफीरियर माना जाता है। जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं कि किसी एक काम को करने का बस एक ही तरीका है, other than that way, if someone is doing the work in different manner, then it is inferior, it is wrong. This is prejudice. किसी भी काम को करने का कभी भी एक ही जरिया नहीं होता है। The main thing is कि काम होना चाहिए, है ना। कैसे हो रहा है that is not that important. Like अगर हम देखें तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है एट प्रेजेंट इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट लैंग्वेज, है ना, एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। दिस इज द ग्लोबल ट्रेंड। ये एक कंट्री की बात नहीं हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है कि इंग्लिश जो है उसको सबसे अच्छा बेस्ट लैंग्वेज इज द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना।
और अदर लैंग्वेज को हम इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, तो दिस फीलिंग कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, in this situation we are judging other languages negatively, and in this situation what may be the result of this prejudice? अगर हमारे मन में ये prejudice है कि English is the best language and other languages are not important, then in that case ये जो prejudice हमारे दिमाग में बना हुआ है कि English ही best language है, इस prejudice का consequence होता है। consequence कहाँ दिखता है? हमारे behavior में, है ना? The consequence of this prejudice depicts in our behavior. हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, बट अगर कोई और लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो हम उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि वी आर प्रेजुडिस्ड, हमारे दिमाग में ये पहले से चीज़ें बनी हुई हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो बेस्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट है, तो कंसिक्वेंस यही होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले बेस्ट हैं, तो हम वी विल शो आवर रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड द पीपल हु आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश दे विल नॉट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अस। तो दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजुडिस। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रेजुडिस हम अभी एक लैंग्वेज के बेसिस पे हमने देखा, ये प्रेजुडिस जो है वो कई सारे चीज़ों के बेसिस पे होता है। लाइक हम रिलीजन के बेसिस पे भी प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं कि इस रिलीजन को मानने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, हमारा रिलीजन को मानने वाले लोग, हमारे रिलीजन को मानने वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, और दूसरे रिलीजन को मानने वाले वो उनके ऐसी प्रैक्टिसेस होते हैं, फालतू होते हैं। और इन द सेम वे द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन दे वर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अस, वो भी इसी तरह से सोचेंगे। लाइक अगर एक हिंदू किसी मुस्लिम के बारे में ऐसा सोचता है कि उनके प्रैक्टिसेस ऐसे ही होते हैं, हमसे इंफीरियर होते हैं, हम सुपीरियर है, तो जो एक मुस्लिम है ही विल ऑल्सो थिंक इन द सेम वे ना, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो वैसे ही सोचेगा कि हमारा ही धर्म जो है वो सबसे अच्छा है, और बाकी के जो रिलीजन है, बाकी के रिलीजन को जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो इंफीरियर होते हैं हमसे। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? द कॉन्सिक्वेंस विल बी द कॉन्फ्लिक्ट, है ना? तो ये हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सोसाइटी में डे टू डे लाइफ में ये हमें नजर आते हैं। कभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कभी इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो ये प्रेजुडिस कई सारे बेसिस पे हो सकती है, हमारे रिलीजन के बेसिस पे, कलर ऑफ द स्किन के बेसिस पे, जिस रीजन को हम बिलोंग करते हैं उस रीजन के बेसिस पे, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज के बेसिस पे, और जो इसके अलावे जो हमारा एक्सेंट होता है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि हम जिस एक्सेंट को यूज कर रहे हैं लैंग्वेज बोलने में वो भी हमारे प्रेजुडिस का कारण बन जाता है। टू पीपल मे बी स्पीकिंग इंग्लिश बट वन पीपल इज स्पीकिंग इंग्लिश इन इंडियन एक्सेंट एंड अनदर पीपल इज स्पीकिंग इंग्लिश इन यूरोपियन एक्सेंट, तो क्या होगा? द पर्सन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश इन इंडियन एक्सेंट विल बी कंसिडर्ड इंफीरियर टू दैट पर्सन हु इज स्पीकिंग इन यूरोपियन एक्सेंट। तो ये चीजें जो है वो हमारे साथ होती हैं, वी एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, एंड ये जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं यही रीज़न बनते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही लोगों से फ्रेंडशिप करें जो हमारे जैसे हैं, है ना? ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं जिससे हम जो हमारे जैसे हो। लाइक इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन समीर 1 एंड समीर 2, दे वर फ्रेंड, दे बिकेम फ्रेंड, है ना? एंड देर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनके बीच में इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, दे बोथ not the one Sameer was not familiar with English language and the other Sameer was fluent in English as well as Hindi। तो ये सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद उनके बीच में फ्रेंडशिप हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारे फ्रेंडशिप के रास्ते में बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट वी डोंट वांट टू बी फ्रेंड with people who are different from us, and not only this, we consciously try to hurt such people। ऐसा भी होता है, you must have experienced these things many times, like अपने neighborhood में या अपने school में इस तरह की चीज़ें हम कई बार फील करते हैं। like if someone belongs to different if someone is speaking different language then he is teased, उसको tease किया जाता है।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हर्ट करने के पर्पज से की जाती हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे अंदर जो निगेटिव फीलिंग होती है रिगार्डिंग अदर पीपल, और जिसके कारण हम उनको नेगेटिवली जज करते हैं और उनको हम इंफीरियर मानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस। और ये जो हमारे दिमाग में जो प्रीजुडिस होती है, दैट प्रीजुडिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल for our behavior towards people who are different from us. हम whatever we behave, whatever we in whatever way we behave, that is determined by our prejudice. Not consciously, you are not knowing consciously कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, but you are doing everything according to prejudice. अगर आपका mind prejudiced है तो you will act accordingly, you will behave accordingly. ओके, एंड इसी प्रेजुडिस से मिलता हुआ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। नाउ वी विल सी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्टीरियोटाइप्स। सो नाउ वी विल कंसिडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल you must understand the meaning, then I will explain it with example, and then after the example I will explain with the definition again. Okay, तो first of all stereotype क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, एक इमेज में बांध दिया कि इस पर्टिकुलर जो पीपल हैं उनको ऐसा ही होना है। हमने एक उनके लिए इमेज, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि दे आर सपोज टू बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो ये जो हमने इमेज उनके लिए बना करके रख दिया, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। नाउ यू आर नॉट एबल टू, यू मस्ट नॉट बी नोइंग व्हाट इज स्टीरियोटाइप, बट व्हेन आई विल ट्राई, आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। In our society, what we find कि there exist gender differences. Not in our society, but in our family also. We experience this gender difference in our day-to-day life. Like many times you must have heard कि like जो बॉयज होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बॉयज, एंड बट डिफरेंट एंड कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गर्ल, है ना। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक बॉय को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए एंड एक गर्ल को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, है ना। तो ये दिस इज द इमेज विच वी आर क्रिएटिंग फॉर देम। लाइक बहुत सारे इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं जो कि हम बॉयज से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ऐसा ही करना चाहिए या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक एक जो बहुत ही कॉमन सेंटेंस हम कई बार ये सुनते हैं कि बॉयज डू नॉट क्राई, है ना, बॉयज डू नॉट क्राई। Exactly, we are not knowing the impact of this sentence. इस sentence का क्या impact होगा एक बच्चे के mind पे, we don't think about it. And even literate people, even people who are very much intelligent, they use such type of sentences. अरे लड़के होके रोते हो, लड़का कभी रोता है, मर्द को दर्द नहीं होता, you must have heard all these things, है ना। ये क्या है, ये हम एक लड़के से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रो नहीं सकता है, उसको रोना क्या है, इफ यू आर क्राइंग देन इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। जो मेल होते वो तो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, स्ट्रांग पीपल डू नॉट क्राई, सो डोंट क्राई। लड़के होके तुम्हें रोना नहीं है, ये इसको हम सही नहीं कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ जो इमेज हमने एक बना दिया कि लड़के को नहीं रोना है, तो एक बच्चा जो एक बॉय चाइल्ड है वो यही सुन सुन के बड़ा होता है, ग्रो अप करता है, वो यही लर्न करता है कि लड़के को नहीं रोना है। जबकि पेन सबको एक जैसा होता है ना, कभी हमें फिजिकल चोट लगती है, हमारी बॉडी पे कुछ इंजरी हो जाता है, कभी हमें इमोशनली हम बहुत हर्ट फील करते हैं, कोई हमें बहुत दुखी करता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हमारी आंखों से आंसू आता है। दिस इज नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल।
अगर मेल है तो क्या उसको पेन नहीं होता है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये सोसाइटी ने ये प्रेजुडिस है सोसाइटी के दिमाग में कि जो मेल होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, और एज दे आर स्ट्रांग दे शुड नॉट क्राई। जो फीमेल होती हैं वो कमजोर होती हैं, दे आर वीक, सो लेट देम क्राई, उनको रोने दो, तुम मत रो। तो ये एक जो बच्चा, जो बॉय चाइल्ड है, वो इसी तरह की बातें सुन के बड़ा होता है, तो वो यही एक बिहेवियर वो समझ लेता है कि हम लड़के हैं तो हमें नहीं रोना है, और यही है स्टीरियोटाइप। जबकि हमने उसको उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं होने दिया, हमने उस पर क्या कर दिया, एक वो लगा दिया, एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर उसको डाल दिया कि तुम्हें ऐसा ही बिहेव करना है जो तुमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है। यू आर नॉट सपोज टू बिहेव एज यू वॉन्ट, यू हैव टू बिहेव एज द सोसाइटी वॉन्ट्स फ्रॉम यू। दिस इज स्टीरियोटाइप। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग दिस स्टीरियोटाइप। ये जो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंसेस होता है, हम लोग इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।